اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کا سری لنکا کے شہری کے قتل میں ملوث ملزمان کو سخت سزائیں دینے کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں واقعے پر شدید تشویش کا اظہار۔ کسی بھی شخص یا ہجوم کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے واقعات کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ شرکاء کا عزم۔ آن جہانی پریانتھا کمارا کی میت سری لنکا روانہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے مرکزی ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ۔ سری لنکن شہری کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ تمام مجرموں کو مثالی سزا دیں گے، کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر داخلہ واقعے سے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات پر فرق نہیں پڑے گا، حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں۔ سری لنکن ہائی کمشنر موہن وجے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سپورٹس ڈرائیو کا آغاز۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں 6000 نوجوان کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، 2700 لڑکیاں بھی شامل۔ سپورٹس مین مشکل وقت سے گھبراتا نہیں۔ سپورٹس باڈیز میں مافیاز کا خاتمہ کیا، نئی سپورٹس پالیسی سے ٹیلنٹ ابھرے گا۔ خیبر پختونخوا میں 300، پنجاب میں 260 گراؤنڈز بنا چکے۔ 63 لاکھ مستحق نوجوانوں میں 47 ارب روپے تقسیم کیے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ غربت کا خاتمہ اور مستحق طبقے کو اوپر اٹھانا حکومت کی اولین ترجیح۔ خواتین کو بااختیار بنا کر قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ ہنرمند خواتین معیشت میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکتی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پائیدار ترقی کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا عندیہ دیا۔ مولانا کئی بار تاریخیں بدل چکے ہیں، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، ساری کوشش دوبارہ سسٹم میں داخل ہونے کے لیے ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کی بریفنگ۔ انسانی، اقتصادی اور دفاعی سلامتی کے مابین تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی سلامتی پالیسی مرتب کی۔ تمام ریاستی اداروں، صوبائی حکومتوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی مشاورت شامل کی گئی۔ آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر سیاچن میں گر کر تباہ۔ پائلٹ میجر عرفان برچا اور میجر راجہ ذیشان جہانزیب شہید۔ سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹرز اور فوجی دستے جائے حادثہ پہنچ گئے۔ ISPR۔ وفا کی تصویروں وطن پر قربان ہونے والے شہداء ہمارے ہیرو۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں شجاعت کے جوہر دکھانے والے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول چڑھائے گئے۔ قوم کو وطن پر قربان ہونے والے بہادر سپوت پر ناز۔ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام کے خلاف نئی دلی میں احتجاجی دھرنا۔ بھارتی دارالحکومت کشمیر کا تنازع حل کرو، دفعہ 370 اور 35A بحال، خونریزی بند کرو، نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی ریاست ناگالینڈ میں فوج کے ہاتھوں 14 شہریوں کے قتل عام کے بعد حالات کشیدہ، ایمرجنسی نافذ۔ ناگالینڈ پولیس بھارتی فوج کے خلاف شہریوں کے قتل عام کا مقدمہ درج کرنے پر مجبور۔ بھارتی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔
बाबरी मस्जिद की शहादत के 29 साल मुकम्मल। 16वीं सदी में तामीर होने वाली बाबरी मस्जिद को 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद किया। बाबरी मस्जिद की शहादत का वाकया साबित करता है कि भारत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। ओमिक्रॉन का खतरा। एनसीओसी ने क्रोएशिया, हंगरी, यूक्रेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, वियतनाम और पोलैंड को कैटेगरी सी में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। 24 घंटे के दौरान मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 336 नए केसेस रिपोर्ट। ढाका क्रिकेट टेस्ट का तीसरा रोज भी बारिश की नजर, खिलाड़ी मैदान में न उतर सके। अंपायर्स ने सूरत हाल देखने के बाद तीसरे दिन का खेल खत्म करने का फैसला किया। पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 188 रन, बाबर आजम 71, अजहर अली 52 रन के साथ नॉट आउट। मैच के ड्रॉ होने के इम्कान बढ़ गए। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। और रूस ने क्रोएशिया को शिकस्त देकर डेविस कप अपने नाम कर लिया। मैड्रिड में खेले गए फाइनल में फाते का फैसला पहले 2 सिंगल्स मुकाबलों के बाद ही हो गया। रूस का ये मजमूई तौर पर तीसरा जबकि 15 साल में पहला डेविस कप फाइनल है। Ladies and gentlemen, a round of applause for this year's champion. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सबके लिए सबके लिए तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने श्रीलंका के शहरी के कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी शख्स या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही ऐसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त किया जा सकता है। इस अज़्म का इजहार इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास में किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत सीनियर अस्करी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने सियालकोट वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा और इनमें मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाएगी। इजलास में मलिक इदनान की बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। इजलास में आजहानी प्रियांथा वाग्ने के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर हुकूमत के इस अज़्म का अयादा किया है कि सियालकोट सान्हे में मुलव्विस किसी भी शख्स से रियायत नहीं बरती जाएगी और तमाम मुजरिमों को हुकूमत मिसाली सज़ा दिलाएगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय से मुलाकात में कही। वज़ीर दाखिला ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि प्रियांथा कुमारा की अफसोसनाक मौत पर पाकिस्तानी अवाम सोगवार और प्रियांथा कुमारा के ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के रद्द-ए-अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उनके जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात इंतहाई देरीना हैं और इस वाक़े से मुतासर नहीं होंगे। हाई कमिश्नर ने प्रियांथा कुमारा की मैयत सरकारी एजाज़ के साथ श्रीलंका रुखसत करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
सियालकोट सानहे में मुश्तिल अफराद के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की मैयत कोलंबो रवाना कर दी गई है। श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय ने वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सानहा सियालकोट के 26 मुल्ज़मान को पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए पुलिस ने 13 मुल्ज़मान का गुज़िश्ता रोज राहदारी रिमांड हासिल किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सिप्रा ने मुल्ज़मान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़मान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। आनजहानी प्रियांथा कुमारा की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उनकी मैयत को श्रीलंका रवाना कर दिया गया है। पंजाब के इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर के वजीर एजाज आलम ने एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए मैयत को वसूल करके पूरे एजाज के साथ रवाना किया। मौलाना ताहिर अशरफी, श्रीलंका के एजाजी काउंसिल जनरल यासीन जोया, महकमा दाखिला पंजाब के हुक्काम और श्रीलंकन हाई कमिश्नर के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए गम का दिन है। हमारे लिए ये सानहा शर्मनाक है। पूरी कौम इस पे अफसरदा है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब इस केस की खुद निगरानी कर रहे हैं। मैं इस मौके पर श्रीलंका की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को भी वज़ीर आज़म की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुजरिम इंशाअल्लाह अपने इंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तान और श्रीलंका के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होंगे। जिन भी जालिमों ने ये जुल्म किया है वो अपने अंजाम से कभी नहीं बच सकेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगी। हम उनके ख़ानदान के साथ और उनके बच्चों के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय ने प्रियांथा कुमारा के हवाले से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। Have any effect on relationship. The government of Pakistan has provided the High Commission with all the assistance from the time this happened in managing the incident, and I express the gratitude of the government and the High Commission to the government of Pakistan for giving unstinted support of that. पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने इस्लामाबाद में श्रीलंका के सफारत खाने का दौरा किया। वफ्द ने सफारत खाने में श्रीलंका के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। वफ्द में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, शनीला रुत, नीलोफर बख्तियार और कमेटी के दीगर अरकान शामिल थे। नाज़रीन, सानहा सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अवार्ड के ऐलान को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इससे दूसरे लोगों की भी हौसला अफजाई होगी। छत की तरफ ये जा रहे थे तो मैं इनके पीछे भागा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने उनको मारा, उनके मुँह पे चोटें आई, ब्लीडिंग हो रही थी और मैं उनके ऊपर जाके फिर गिर गया। उनको बचाने की कोशिश की, खड़ा रहा उनके ऊपर। लोग मुझे मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैं फिर उनके साथ खड़ा रहा और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये सारे हालात को, वाक़यात को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं ताकि इससे लोगों को मोटिवेशन मिले और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो ना हों। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी से टैलेंट उभर कर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए मरबूत इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 300, पंजाब में 260 ग्राउंड्स बना चुके हैं। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, वजीर आज़म इमरान खान हैं आप। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खेलों से इंसान मुकाबला करना सीखता है और स्पोर्ट्समैन मुश्किल वक्त से कभी नहीं घबराता। जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है, हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हार से सीखते हैं। ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है
तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। आप हारते तब हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। वजीर आजम ने कहा कि स्पोर्ट्स बॉडीज में माफियाज के खात्मे और मुल्क के बासलाहियत नौजवानों को आगे लाना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि हर यूनियन कौंसिल की सतह पर खेल के मैदान होने चाहिए। कोशिश है कि पाकिस्तान आलमी मुकाबलों में भरपूर हिस्सा ले। ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। चौथी चीज, बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम उसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इनकी मुकम्मल तौर पे इस्लाह, हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं। विफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत नौजवान हर मैदान में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह और सेक्टर्स में माफियाज को आप लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह इन 5 सालों में हम स्पोर्ट्स से भी माफिया को खत्म करवाएंगे। वजीर आजम के मुआविन खसूसी उस्मान डार ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को गली से ग्राउंड और फिर फाइनल राउंड तक लेकर जाएंगे। इस कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव से कामयाब जवान हीरोज को हम के सामने लेके आएंगे, और यही कामयाब जवान हीरोज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे। क्यों आंखों में नमी, नहीं हिम्मत की कमी, हौसला ऐसा के तूफान से टकराएगा, अब है चांस मिला। यूके और पाकिस्तान दोस्ती बहुत मजबूत है। I am very excited to see the arrival of this sporting initiative of football in Pakistan. नई स्पोर्ट्स पॉलिसी न सिर्फ कामयाब जवान हीरोज को सामने लाएगी बल्कि आलमी खेलों में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत की राह भी हमवार करेगी। नौजवान मुल्क की आबादी का 60% से जायद हैं। खेलों में उनकी भरपूर शिरकत से न सिर्फ सेहतमंदाना सरगर्मियां बढ़ेंगी बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशल रोशन करके मुल्क के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वफाकी वज़रा, मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में एथलीट्स और खेलों के शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब का हवाल बता रही हैं सदफ अफसल। पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए मुल्की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के इजरा की रंगारंग तकरीब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में हुई। नौजवानों के दिलों की धड़कन और उनके कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान स्टेडियम पहुंचे तो उनके खिलाड़ियों का जज्बा दीदनी था। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। जबकि हजारों की तादाद में एथलीट्स ने सलामी भी पेश की। सकाफती शो और पैराग्लाइडिंग भी तकरीब का हिस्सा थे। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज मशल रोशन करके किया गया। मुल्क भर से आए नौजवानों ने सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम के आगाज पर बेहद खुशी का इजहार किया। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इमरान खान ने यूथ के लिए। पाकिस्तान की यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से वो अपना नाम रोशन करे। फीमेल्स को जो है मौका मिल रहा है कि वो लोग आगे बढ़े और आगे जो है स्पोर्ट्स की अपने प्रोफेशन को जो है आगे बढ़ा सके। और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हमारे यूथ का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो रहा है। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल समेत 12 खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। मैंने पहली दफ़ा देखा है इस हुकूमत में
کہ یوتھ کے لیے انہوں نے اسپیشلی اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے. ان کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا کہ اپنے اسکول یونیورسٹی اور اس کو ریپرزینٹ کرے. نیشنل لیول پہ کھیلیں گے آہستہ آہستہ, پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میں بھی جائیں گے. ماضی میں کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ ان کا کمپٹیشن کروائیں. لڑکیوں کو موقع نہیں ملتا اسپورٹس میں آگے آنے کا, تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور میرا خیال ہے اس کو آگے آنا چاہیے. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے باصلاحیت کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے 1 کروڑ نوجوانوں کو سلیکشن کے عمل سے گزارا جائے گا. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے کامیاب کھلاڑیوں کو قومی اور عالمی سطح پر کھیلنے اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کا سنہرا موقع فراہم کیا جائے گا. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیراعظم عمران خان نے بہتر مستقبل کے لیے سینتاس ماحولیاتی بھاری منصوبے کی اصولی منظوری دے دی. اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے بڑے شہروں میں طویل مدت اور پائیدار صفائی کے منصوبوں کی ضرورت ہے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ نہیں, تاہم پھر بھی ہمیں اس کے حل کا حصہ بننا ہے. آئندہ نسلوں کو صاف ستھرا مستقبل فراہم کرنا موجودہ نسل کی ذمہ داری ہے. عمران خان نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع کا نقصان جنگلات کی کٹائی اور جنگلات کی زمین پر تجاوزات کی وجہ سے ہے. ہمیں اپنے پہاڑوں سے سمندر تک دریائے سندھ کی طاس کی حفاظت کرنا ہوگی. اجلاس میں ورلڈ بینک کی جانب سے نیچر پالیسی بیس بجٹری سپورٹ کی تجویز کی بھی منظوری دی گئی. سر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پانی کے مؤثر استعمال کا نظام وقت کی ضرورت ہے. ہم سب کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس نعمت کا درست استعمال کرنا ہے. حکومت ملک میں پانی کے ذخائر بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے. بلوچستان میں اس سلسلے میں اسمال ڈیمز کی تعمیر پر کام جاری ہے. صدر مملکت نے یہ بات اسلام آباد میں پانی کے استعمال کے مؤثر نظام پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دنیا بھر میں پانی کے تحفظ اور اس کے مؤثر استعمال پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. ہمیں بھی اس کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے ایسا نظام وضع کرنا ہے جس سے پانی کے ضیاع کا خاتمہ ہو اور پائیدار بنیادوں پر اس کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا سکے. بعض ممالک سیریسلی واٹر سکیرس تھے, انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے, ڈرپ اریگیشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہمارے ہاں ابھی بھی میجارٹی آف فارمنگ جو ہے وہ فلڈ اریگیشن سے ہو رہی ہے. اٹس اے ٹریمینڈس ویسٹ آف واٹر. یہ تو اسپرنکلر اریگیشن کر لیں یا ڈرپ اریگیشن کر لیں, لو ہینگنگ فروٹ. دا گورنمنٹ شوڈ میک سیریس ایفرٹس کہ یہ آسانی سے اویلیبل ہو جائیں یہ چیزیں. اور فارمر کو بھی. کراچی کے اندر واٹر میٹرز تھے, اس کے بعد زمانہ آیا مفت پانی کا, تو ویسٹ بھی بہت ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی نہ کوئی سوچ پیدا کرنی پڑے گی کہ پانی کی میٹرنگ اور پرائسنگ بھی ہو جائے تاکہ کنزرویشن چلے. صدر مملکت نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پانی کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بعض علاقوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے. انہوں نے واٹر مینجمنٹ پالیسی 2018 کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے ساتھ استعمال شدہ پانی کے دوبارہ استعمال پر توجہ مرکوز کرنی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان کو زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی اور فی کس پانی کی دستیابی کے چیلنج کا سامنا ہے. حکومت پانی کے تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کو اولین ترجیح دیتی ہے. اس سلسلے میں اسلام آباد کو ملک کا پہلا واٹر سمارٹ سٹی بنانے کے پروگرام پر عمل پیرا ہے, جس کا دائرہ دیگر شہروں تک بڑھایا جائے گا. انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل مارک سمتھ اور ادارے کی بورڈ ممبر نے اپنے خطاب میں پانی کے تحفظ, آلودگی سے بچانے, استعمال شدہ پانی کے دوبارہ استعمال اور پانی کے ذخائر کی تعمیر سے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اسد یار خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا عندیہ دیا ہے. مولانا کئی دفعہ تاریخیں بدل چکے ہیں, اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی ساری کوشش دوبارہ سسٹم میں داخل ہونے کے لیے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. مارچ کرنا, احتجاج کرنا, مہنگائی کے اوپر بات کرنا, یہ اپوزیشن کا حق ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم تنقید کریں. اور جس طرح وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کے اوپر تنقید کرے. مولانا فضل الرحمان ایک ایسا راگ الاپ رہے ہیں جس کو نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھ دینے والا. بے وقت کی راگنی اسی کو کہتے ہیں. مولانا حوصلہ کیجئے اور اپنے دائیں بائیں دیکھیے, آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے بیٹھے ہیں. 23 مارچ پاکستان کی قوم کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے. یہ قوموں کو جوڑنے کا دن ہے, قوموں کو ایک دوسرے سے رد کرنے کا دن نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم 23 مارچ کو ہم بھی یہاں ہیں
आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि पूरी PDM चूचू का मुरब्बा बनी हुई है, जिनके पास अपनी चोरी बचाने के अलावा कोई अवामी एजेंडा नहीं। उनके इस्तीफों का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। PDM के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत का कहना था कि 23 मार्च का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसको पूरी कौम यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाती है। इस दिन पर एहतजाजी मार्च का ऐलान करने वाले कौमी यकजहती ख़राब करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस्तीफों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मौलाना फजल रहमान के चेहरे पर आज मायूसी के बादल छाए हुए थे। कौमी सलामती के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने ब्रीफिंग में बताया कि कौमी सलामती की पॉलिसी इंसानी, इक्तसादी और दिफाई सलामती के माबैन ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए मुरतब की गई है। इक्तसादी सिक्योरिटी उस पॉलिसी में बुनियादी जुज़्व है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी के मुतअद्दिद मुसव्विदों पर तमाम रियासती इदारों बशमूल सूबाई हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों और माहिरीन के साथ मुशावरत की गई। उन्होंने बताया कि इंतकाल इक़्तिदार और तेज़ी से बदलते हुए आलमी हालात से कौमी सलामती पॉलिसी की तरजीहात को हम आहंग बनाने के लिए कौमी सलामती पॉलिसी के दस्तावेज़ का हर साल जायज़ा लिया जाएगा। ये पॉलिसी चैलेंजेस निपटने और मौक़ों से मुस्तफ़ीद होने के लिए रहनुमा उसूल फराहम करेगी। स्पीकर असद कैसर ने कौमी सलामती की पॉलिसी को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ये जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए कौमी पॉलिसीज़ पर अवामी नुमाइंदों से मुशावरत ज़रूरी है। ये पॉलिसी मुस्तक़बिल में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अहाता करेगी और उनके हल के लिए रहनुमाई फराहम करेगी। इजलास के शुरका ने कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील पर सिक्योरिटी डिवीजन की कोशिशों को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये पॉलिसी महफूज और खुशहाल पाकिस्तान की जानिब एक मुस्बत पेशरफ साबित होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पायदार तरक्की के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क से गुर्बत का खात्मा और पसमानदा तबके की बहाली हुकूमत की अहम तरजीहात है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इकॉनमी से इस्तेफादा करना वक्त की ज़रूरत है। मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के साथ सोच के एतबार से मजबूत बनाना होगा। डिजिटल इकानमी के अंदर जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो हम अपने डिप्राइव सेक्टर्स को बड़ी जल्दी मेन स्ट्रीम मईशत में ले आएंगे। इसके अंदर औरत बड़ी अहमियत रखती है और मैं समझता हूँ कि एहसास की जो डिसबर्समेंट्स हुई वो औरत के साथ हुई, औरत को दी गई। तो मैं उसका जैसे ही औरत का बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली खुले या डिसबर्समेंट्स बैंक के थ्रू जाने लगे, उसके अकाउंट में जाने लगे, तो हम उसको फर्दर एम्पावर करेंगे। जब उसके हाथ में पैसा आएगा, जो लोन स्कीम चलाई जा रही हैं नौजवानों के लिए, कामयाब जवान के एतबार से, जो बैंक्स ने औरतों के लिए लोन स्कीम शुरू की हैं, ये सब अगर इसके ऊपर हम कोशिश करके उनको उस तरफ, औरतों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, तो मईशत के अंदर डिप्राइव्ड सेक्टर, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये औरतों के बगैर हो ही नहीं सकता। मुआवने खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए माशरे के पिसे हुए तबके तक रसाई को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि उनको अपनी दहलीज पर माली मुआवनत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि एहसास की छतरी तले 20 से ज़ायद प्रोग्राम जारी हैं जिनमें शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम एहसास के ज़रिए करोड़ों ख़ानदानों को माली मदद फराहम की गई, जिसकी दुनिया मुतरिफ है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे खबरनामे में एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। सबके लिए सबके लिए अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, सियाचिन में आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट मेजर इरफान बर्चा और मेजर राजा ज़ीशान जहां से शहीद हो गए। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर के हादसे की जगह पर सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और फौज के दस्ते पहुंच चुके हैं।
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलकत फारूक हबीब ने सियाचिन में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है। नाजरीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दिफाई वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से लाहौर में मियानी साहिब कब्रिस्तान में खुसूसी तकरीब हुई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के हवाले से अज़का मकसूद की ये रिपोर्ट देखिए। वफा की तस्वीरों। मेजर शब्बीर शरीफ कुंजाफ जिला गुजरात में पैदा हुए। 19 अप्रैल 1964 को उन्होंने फौज में कमीशन हासिल किया और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात किए गए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने सुलेमान की सेक्टर में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की क़ियादत के दौरान एक मार्के में दुश्मन का सख्त जानी और फौजी नुकसान किया। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब उन्होंने आसाम रेजिमेंट के कंपनी कमांडर को हलाक करके अहम दस्तावेजात पर कब्जा कर लिया। 6 दिसंबर को दुश्मन ने एक खौफनाक जवाबी हमला किया जिसमें मेजर शब्बीर शरीफ, जो मुसलसल दुश्मन पर फायरिंग कर रहे थे, शहीद हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने मेजर शब्बीर शरीफ को उनकी आला अस्करी खिदमात पर निशान हैदर का एजाज अता किया। मेजर शब्बीर शरीफ लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को उनके 50वीं यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज मियानी साहब कब्रिस्तान में तकरीब हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर लाहौर की तरफ से जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा एजिद ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी बेल्जियम के 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुँच रहे हैं, जहाँ वो यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह और नायब सदर जोसेफ बोरेल के हमरा पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास की सदारत करेंगे। दौरे के दौरान शाह महमूद कुरैशी की नेटो हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग से भी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारिजा की ब्रसल्स में यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक अपने ख़त में वज़ीर ख़ारिजा ने मकबूजा वादी में बिगड़ती इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, भारतीय इक़दामात की वजह से आलमी अमन को दरपेश ख़तरात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड से भी आगाह किया। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करेंगे और आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ कश्मीर से फौजी ताकत के जरिए निमटने की भारतीय सोच की मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीर खालिसतन सियासी मसला है जिसे हक़ खुदरादियत के जरिए हल करने की ज़रूरत है, जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा ने दे रखी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने अपने बयान में कहा कि रियासती अवाम की अपने नाकाबिल तनसीख हक़ के हुसूल के लिए अनमोल कुर्बानियाँ जदीद दुनिया की इनकलाबी तहरीकों में शानदार बाब का इजाफा है। उन्होंने कहा कि भारत के 10 लाख से ज़ायद फौजियों ने पूरी कश्मीरी कौम को महसूर कर रखा है, जिन्हें काले कवानीन के तहत किसी भी शख्स के कत्ल की खुली छूट हासिल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया और भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। बडगाम में तहरीक वहदत इस्लामी की मजलिस मुशावरत के इजलास में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत और लगाव रखते हैं और वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के बाद मुमलिकत खुदादात के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। इजलास में ये बात मकबूजा इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कही गई है, जिसमें उन्होंने मकबूजा इलाके में पाकिस्तान के हामी अवाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में खबरदार किया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने काबिज भारतीय फौज के हाथों बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ नई दिल्ली में एहतजाजी धरने की क़यादत की। एहतजाज के दौरान कश्मीर का तनाज़ा हल करो, दफ़ा 370 और 35A बहाल करो, कश्मीर में खून रेजी बंद करो और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम बंद करो जैसे नारे लगाए गए। भारत में इंतहा पसंद RSS नजरिए पर अमल पैरा हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की गैर कानूनी तामीर को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। तफसील जानते हैं ज़ीशान भट्टी की इस रिपोर्ट में।
भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को आज 29 बरस मुकम्मल हो गए। 1992 का ये वाकया न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया के हर बाशऊर शख्स के दिमागों में आज भी ताज़ा है। तर्जुमान दफ्तर हाजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम अक़लियतों के मजहबी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। नवंबर 2019 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐबदार फैसला इंसाफ की मौत थी। तर्जुमान ने कहा कि 29 साल पहले जो मजहबी तासुब देखा गया था वो वहशत और बर्बरियत में मजीद बढ़ गया है। 2002 में गुजरात में और फरवरी 2020 में दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम और इम्तियाजी शहरियत तरमीमी कानून ने जमहूरियत के दावेदार भारत का चेहरा बुरी तरह मसख किया। एक तरफ आसाम में मुसलमानों की हालिया और वहशियाना बेदखली, त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों की अमलाक की तोड़ फोड़ भारतीय जनून और वहशीपन का मजहर है, और दूसरी तरफ अक़लियती मुसलमानों के इलाकों में मजहबी फ़राइज़ की अंजामदही पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में भी भारतीय इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन बना रखी हैं। तर्जुमान दफ्तर हाजा का कहना है कि भारत बाबरी मस्जिद को इसकी असल जगह पर दोबारा तामीर करे और न सिर्फ मसाजिद और इस्लामी मुकद्दस मकामात की हिफाजत यकीनी बनाए बल्कि इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों पर अमल दरामद कराए। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत की शुमाल मशरकी रियासत नागालैंड में फ़ौज की जानिब से 14 शहरियों के कत्लेआम के बाद हालात कशीदा हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों से निज़ाम ज़िंदगी दरमरम हो गया। अवामी दबाव पर पुलिस ने फ़ौज के खिलाफ शहरियों के कत्लेआम का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में लिखा गया है कि फ़ौजियों ने आम शहरियों को दानिस्ता तौर पर कत्ल किया। भारत की कई रियासतों में अलहदगी की तहरीकें ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर, छत्तीसगढ़ और नागालैंड समेत कई भारतीय रियासतों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज है। पाकिस्तान और भारत से आए हिंदू यात्रियों ने घोटकी के गांव हयात पताफी में संत शादाराम के 313वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की। तकरीबात का आगाज़ भारत से आए शादानी दरबार के पंडित संत युडिस्टर लाल ने किया। इस मौके पर बेले बशरीक अकीदतमंदों ने दर्शन लाल 3 रोज़ा तकरीब में शादानी दरबार से मंसूब हिंदू मजहब के हज़ारों अफराद शिरकत कर रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी फ़ंड ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में सेहत की देखभाल, इक़्तिसादी तरक्की और समाजी उमूर तक ख़वातीन की रसाई बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को खुशहाल मुआशरे की तामीर के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोरोना की रोकथाम के लिए चीन की जानिब से अफ़गानिस्तान को वैक्सीन की 10 लाख खुराकें फ़राहम की गई हैं। चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $12 लाख मालियत का तिब्बी सामान भी दिया गया है। नाज़रीन, म्यांमार में अदालत ने सरकर्दा सियासी रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सज़ा सुना दी। ताहम फौजी हुकूमत ने इस सज़ा को कम करके 2 साल कर दिया है। म्यांमार में रवां बरस फरवरी में इक़्तिदार पर फौज के कब्जे के बाद सूची ने बगावत कर दी थी, जिस पर उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि उनकी जमात के कई दूसरे रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया था। नाज़रीन, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन पर की जाने वाली इब्तदाई तहकीक ये बताती है कि ये ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है। वबाई अमराज के माहिर एंथनी फ्योसी के मुताबिक ये मालूमात इब्तदाई हैं और अभी इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात दरकार हैं। जनूबी अफ्रीका से आने वाली मालूमात से पता चलता है कि वहाँ लोगों को हस्पताल लाने में इजाफा नहीं हुआ। ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका में सामने आया और उसके सबसे ज़्यादा मरीज़ भी वहीं हैं। नाज़रीन, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ख़तरे के पेश नज़र कैटेगरी C के ममालिक में इजाफा कर दिया गया है। इन ममालिक से मुसाफरों के पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी है। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में दुनिया भर में कोरोना वबा और हवाई सफ़र से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया गया। NCOC ने कैटेगरी C के 15 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी है। NCOC के मुताबिक कैटेगरी C ममालिक में सफ़र करने वाले लोगों की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। इन ममालिक में सफ़र करने वाले लोगों का 3 रोज़ा करंतना के बाद PCR टेस्ट लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में मोटरवे पर सफर करने वाली गाड़ियों के लिए M-टैग के लाज़मी इस्तेमाल पर अमल दरामद शुरू हो गया है। M-टैग के हुसूल के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। तफसील बता रहे हैं इस्लाम गाजी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मोटरवे पर सफर के लिए 7 दिसंबर से तमाम गाड़ियों पर M-टैग लाजमी करार दे दिया गया है। मोटरवे हकाम के मुताबिक M-टैग का इतलाक इन तमाम मोटरवेज पर होगा जो रावी टोल प्लाजा को लिंक करती हैं। मोटरवेज पे एंट्री के लिए M-टैग का होना लाजमी है और M-टैग में इतना बैलेंस लाजमी हो जितना आप लोगों ने ट्रैवल करना है। अदरवाइज क्या होगा कि मोटरवे से गाड़ियां जो वो सफर नहीं कर सकेंगी। जो जिन गाड़ियों में M-टैग नहीं है या जिनका बैलेंस कम है, उनसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों में M-टैग लगवाएं
या अपना बैलेंस पूरा करें, फिर ही आप दाखिल हो सकेंगे मोटरवे पे। मोटरवे पुलिस की जानब से एम टैग के मुताल्लिक शहरियों की रहनुमाई के लिए खुसूसी मुहिम भी जारी है। अवाम की सहूलत के लिए तमाम टोल प्लाजों के बाहर एम टैग लगवाने और बैलेंस रिचार्ज करवाने के लिए स्पेशल बूथ कैंप कर दिए गए हैं। गाड़ी पे एम टैग लगवाने के लिए आपको ये चाहिए, ID कार्ड चाहिए और गाड़ी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बैलेंस होता है रिचार्ज करवाते हैं लोग, जब तक ये मोटरवे पे सफ़र नहीं करेंगे वो आपका बैलेंस सेव रहेगा। टैग लगा हुआ है, फौरन आए हैं और फौरन से जो है टोल प्लाजे से जो है ना विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम जो है हम यहाँ से गुजर गए। इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं एम टैग के, क्योंकि जिस गाड़ी पे लगा एक तो वक्त की बचत होती है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानब से शहरियों के लिए ऑनलाइन रिचार्ज की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। शहरी मोटरवे पर एम टैग और बैलेंस रिचार्ज करवाने के मतलब किसी भी किस्म की मालूमात के लिए मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 1313 पर रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि महंगाई सिर्फ रुपए की कदर में कमी की वजह से नहीं हुई, 3-4 माह में पेट्रोल के दाम कम होने से महंगाई कम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के खालिस मुनाफे के 110 अरब रुपए के बकायाजात मेरी कोशिशों से अदा हुए। मुशीर खजाना ने बताया कि कराची में मेरा वोट रजिस्टर्ड ही नहीं था, मेरा वोट पहले लाहौर में रजिस्टर्ड था और अब मर्दान में रजिस्टर्ड है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सख्त मुआशी हालात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद में अतातुर्क एवेन्यू पर पहली प्लास्टिक रोड की तामीर के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि वफाकी तरक्याती इदारे ने दुरुस्त वक्त पर सही मनसूबा शुरू किया है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान में किसी को मजहबी इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं देंगे। अगर दहशत गर्दी पर पक्का हाथ न डाला गया तो बहुत मसाइल होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि आदाद शुमार से वाज़े है कि कल लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब 82% अवाम ने हिस्सा नहीं लिया। मुकाबला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी में हो तो अवाम घरों से बाहर नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने अपनी मनफी सियासत का नतीजा लाहौर इलेक्शन में देख लिया। असलम गिल जरदारी और नून लीग की करप्शन का बोझ अपने कंधे पर उठाकर फतह हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि माजी में करप्शन और अकरबा परवरी उरूज पर रही, जिसके बायस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नस्ब व नस्क तबाह हुआ। इत्तलात व नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी और मुतालिका उमूर पर गुफ्तगू हुई। कायमा कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, राना शमीम और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को दावत दी कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना नुक्ता नज़र वाजे करे। इजलास में सहाफ़ियों पर नामालूम अफराद की तरफ से हमलों और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई कोशिशों का मामला भी ज़ेर गौर आया। ये फैसला किया गया कि कायमा कमेटी का इजलास 15 दिसंबर को तलब किया जाएगा। वफाकी वजीर ज़ैफ़रान महबूब सुल्तान ने मियांवाली में अफगान मुहाजिरीन के कैंप कोटचंदाना में मॉडल स्कूल का इफ्तिताह किया। UNHCR हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वफाकी वजीर को कैंप में मुहाजिरीन को फराहम की गई सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार से कोका कोला पाकिस्तान के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और हरीपुर में नए ग्रीन फील्ड प्लांट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। $5 करोड़ की सरमायाकारी से तैयार होने वाला ये प्लांट फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। खुसरो बख्तियार ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी से मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के साथ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए सरहदी इलाकों पर 13 बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर काम जारी है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं आज़म बलोच। हुकूमत ने ईरान और अफगानिस्तान के सरहदों के साथ सरहदी इलाकों पर 13 बॉर्डर मार्केटें कायम करने का मंसूबा बनाया है। पहले मरले में जिला ग्वादर के 2 मुकामात पे ट्रेड जंक्शन कायम किया जाएगा। बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियों से हुकूमत को बड़ा रेवेन्यू मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमारे यहाँ फूड स्टफ से लेके तमाम चीजें बॉर्डर से आती थी, वहाँ से लोग यहाँ लाते थे। यही छोटे कारोबार भी, यही दुकानदारी भी लोगों का इसी में चलता है। हुकूमत के इस इक़दाम से सूबे में रोजगार के मौके पैदा होंगे और सरहदी इलाकों में तरक्की आएगी। आजम बलोच, PTV न्यूज़, क्वेटा। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह मुल्की बरामदात $2 अरब 90 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर रहीं, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 34% ज़्यादा हैं। ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्की बरामदात में बेपनाह इजाफा हुआ।
जो गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, और इसकी बड़ी वजह मुल्की मसनूआत का बड़े पैमाने पर आलमी मंडियों में रसाई समेत सनतकारों को बिजली और गैस के टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। रवा माली साल के 5 महीनों में मुल्की बरामदात 12 अरब 37 करोड़ डॉलर रही, जो कि मुल्की तारीख में रिकॉर्ड है, जबकि 2018 के माली साल के 5 माह के मुकाबले में 37% ज्यादा है। रवा माली साल नवंबर के महीने में 2 अरब 90 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई, जो कि गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने के मुकाबले में 34% ज्यादा है, जबकि 2018 के नवंबर के माह से 47% ज्यादा है। अगर एक्सपोर्ट 34% बढ़ती है तो ये मेरे एक्सपोर्टर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हुकूमत को भी मुबारकबाद, उसमें ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म ने जो गैस और बिजली के रियायती नर्ख एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो रखे हैं वो इसमें बड़ा मदद कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स कमिटमेंट ऑनर कर रहे हैं। मुल्क की बरामदात का तकाबली जायजा लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में माली साल 2018 जुलाई के मुकाबले में अब तक बरामदात में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें टेक्सटाइल, IT, स्पोर्ट्स और दीगर अशिया शामिल हैं। रवा माली साल के जुलाई में 43%, अगस्त में 21%, सितंबर में 44%, अक्टूबर में 31%, जबकि नवंबर में 47% का इजाफा रिकॉर्ड सतह पर रहा। गुज़िश्ता माली साल के 5 माह के दौरान मुल्क की बरामदात 9 अरब 75 करोड़ डॉलर की गईं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए देखना होगा कि सिर्फ हम अपने ट्रेडिशनल आइटम्स पे काम ना करें, हम नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स पे भी काम करें। इन तमाम चीज़ों पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। इसमें IT की एक्सपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी सीरियसली काम हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा टारगेट है 61 बिलियन डॉलर्स का, जो कि एंटिसिपेट करती है यूनाइटेड नेशंस की फिगर्स, तो हम उसको अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। बरामदात के फरोग से न सिर्फ मुल्क की तिजारती हजम में इजाफा हुआ है, बल्कि नई सनतों के क़याम और बंद यूनिट्स भी दोबारा खुलकर मौसर अंदाज से मुल्क की मईशत पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात ने PTV न्यूज़ इस्लामाबाद का दौरा किया। तफसील बताएंगे हसन तारिक भट्ट। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तालिबात ने PTV न्यूज़ के स्टूडियो समेत दीगर अहम शोबों का काम देखा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पीछे बैकग्राउंड कैसा है, मुझे बहुत अच्छे लगे इनके स्टूडियोज, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमें जनरल नॉलेज मिली यहाँ पर, जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर न्यूज़ चलाया जाता है बाकायदा चागी के नाम पर, और बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा, हमें पता चला कितनी मेहनत चाहिए होती है यहाँ पे। तालिबात को PTV न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। विजिट कराने का मकसद ये था कि एक बैनुल सूबाई हम आहंगी जो है उसका फ़रोग हो, और उनको पता चले कि पाकिस्तान के कौमी अदारे किस तरह काम कर रहे हैं। ये 10 डेज़ का विज़िट बलूचिस्तान की जो यूथ है उसमें स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस की फ़ीमेल यूथ है उनके लिए अरेंज किया है। पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर इनको हम लेके जा रहे हैं। इस तरह के दौरों से नौजवान नस्ल में अहम मुल्की इदारों के बारे में एहसास अपनायत पैदा होता है और उन्हें मुफीद मालूमात भी हासिल होती हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को, तमाम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है।